Hello, friends. Welcome to New Review. Hello, students. Welcome to new video lecture, which is nothing but the work, energy, and power. Second topic of your syllabus, and most important topic as we are looking for MBBS PG entrance examination. In that, these three topics were differently split up and different topics are used. If you wanted to admit it for MBBS, so you have to go throughout the NEET PG, NEET UG. In that, these three topics plays an important role for that. So today we are going to discuss about work. Next video lecture is based on energy, and third one is based on power. On that we are going to discuss it. So today we are nothing but the work. I'll tell you one thing. You know, in our family or in anywhere else, if you went for the market or if you went for the Prozone malls, if you went for the squares, anywhere else you went, you have might been seen that the persons were there. They used to work over there. So I usually say that one person is there, okay, he has sitting on a chair, and somebody came and just said, can you please do this work, I'll pay you for this, you have to just lift this load and put it somewhere else. What he exactly used to say, that you have to put the load and you have to you have to lift up the weight and put it aside. So what the person exactly do, he go there, he went over there, he lift up the load but stand at one place only. He lift the load, stand, that's it. Again lift the load, stand, that's it. Again lift the load, stand, that's it. So just tell me, if you are there, so are you going to pay for that? What you said, you have done the work, so I'll pay you for that. Is it like that? Like that you are going to do? No, never. You said that you never walk a single meter, you never walk. You have to walk with that load. At that time, it means at that time only it considered to be as you have done the work. Otherwise, how it will be considered that you have done the work? No. So what you are exactly looking for, means what you are exactly doing, that is you are just lifting the load, put it down, lifting load, put it down. You are not walking from one place to another place, which means you are not doing the work. Now the person has again started thinking. Now what he exactly do? He started walking without lifting load. He's only start walking here and there. He's just roaming here and there, and everywhere he is roaming. That is only he came from one place to another place, which means the person that the load bearers are like this, and the person is like this. This is the person, very dangerous person I have drawn, because my drawing is only drawing. The person is there. He only has to use the walk. He roaming here and there. He come here, goes there, come here, goes there, come here, goes there, come here, goes there. Like that only he was doing. He was only walking, going. Walking means coming, going back, coming, going back. At that time again person came and just saying, I am not going to pay you. Are you there? If consider that you are there, are you going to pay for that? No. What you said? You only move, but you can't apply force on the blockets. You have to apply the force on the load, and with that force you have to walk. With that force you have to walk. At that time it will be considered that you are doing work, which means work is nothing but the product of force, applied force into displacement, F into S. अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है एग्जैक्टली। एक आदमी है, एक आदमी को बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे बोरे पड़े हैं, इन बोरों को उठाओ और ले जाके रख दो। अब उस आदमी ने क्या किया, उठाया रखा, उठाया रखा, उठाया रखा, बस एक ही जगह पे। वो एक जगह से दूसरी जगह गया ही नहीं, उसने वहीं पे उठाया रख दिया, वहीं पे उठाया, पूरे दिन वैसे करता रहा। बताइए क्या आप बोलोगे आपने काम किया है? नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे, आपने कुछ काम ही नहीं किया है तो मैं पे किस चीज का करूं? आपको काम तो करना चाहिए। अगर आप काम करोगे तो मैं आपको पे करूंगा, आपने काम ही नहीं किया तो मैं पे किस चीज का करूं? क्लियर है, बराबर है, क्योंकि आपने खाली लोड फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया क्या आपने? नहीं, आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, आपने खाली फोर्स लगाया, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ क्या? नहीं हुआ।
सेकंड उस आदमी ने क्या बोला, अच्छा ठीक है डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो ना, ठीक है मैं कल डिस्प्लेसमेंट कर लेता हूं। अब उसने बोरे वहीं पे रहने दिए, फोर्स लगाए नहीं, खाली डिस्प्लेसमेंट, अरे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, खाली हेल्प पार्टी, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से, पूरे दिन खाली यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, यहां से आ गया रात में फिर से मालिक, आप समझो फिर से रात में आ गए। अब आप बोलोगे क्या किया आपने, वो बोलेगा मैंने पूरे दिन डिस्प्लेसमेंट किया है। फिर आप क्या बोलोगे, अरे आपने डिस्प्लेसमेंट किया लेकिन आपने फोर्स कहां लगाया, फोर्स आपने लगाया ही नहीं, तो इसका मतलब आपने वर्क डन वहां पे किया ही नहीं। अगर आप वर्क डन की बात कर रहे हो तो आपको वहां पे फोर्स भी लगाना है, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी करना है। अगर फोर्स लगा के आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो आपका वर्क कंसिडर होगा। अगर आपने फोर्स लगाया ही नहीं, खाली डिस्प्लेसमेंट किया, तो भी आपका वर्क डन 0 है। और अगर आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, तो भी आपका वर्क डन 0 है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ प्लस में हो गए, माइनस में हो गया, मल्टीप्लीकेशन में हो गए, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन में हो गए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ही ऐसा होता है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो पूरा आंसर 0 आता है। यहां पे इस केस में वही है, फोर्स नहीं लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, फोर्स 0 था, करो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट 0 करो, फिर भी 0। इसका मतलब वर्क डन क्या है, वर्क डन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है अभी, वर्क डन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एक काम कर देता हूं, इसको आपको समझा देता हूं, दैट इज वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, इज नोन एज वर्क। अब फोर्स का, अब इसका यूनिट जस्टिफाई करते हैं हम लोग, यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं किसका, वर्क का। वर्क का यूनिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वर्क का यूनिट आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल है, डोंट डू एनीथिंग, फोर्स का यूनिट लगा दीजिए न्यूटन, फोर्स का यूनिट लग गया न्यूटन। अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या लगेगा, मीटर। तो वर्क डन का यूनिट क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर। लेकिन हम लोग न्यूटन मीटर नहीं बोलते हैं, हम लोग वर्क डन के लिए स्पेसिफाइड यूनिट यूज करते हैं, और वो यूनिट लगता है वर्क डन इज इक्वल टू जूल। हम लोग वर्क का यूनिट क्या लगाते हैं, जूल। कुछ कोई भी टाइप का वर्क अगर आया तो उसको बोलेंगे हम लोग जूल। वर्क डन इज नथिंग बट द जूल. So SI unit of work done is joule. Now there are three type of work done is there. First one is positive work, second one is negative work, and third one is zero work. Now what is mean by positive work? Serious. हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ब्लॉक लेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे, यहां पे अप्लाइड फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है, एक बच्ची क्या कर रही है, एक टॉय कार है, टॉय कार को रस्सी बांध के वो खींच रही है, तो रस्सी का एंगल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, और टॉय कार किधर को जाएगी, इधर को मूव करेगी ऐसे सामने। सो दैट्स वाई बच्ची रस्सी से खींच रही है और टॉय कार इधर को जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो एंगल बनेगा, दैट सर्टेन एंगल इज टेकन टू बी एज ए थीटा। नेक्स्ट, अगर ये हमारा थीटा ले लिया हमने, नो प्रॉब्लम, हमारे को थीटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे, ये करेंगे F1 कंसिडर करेंगे, इसको F कंसिडर करेंगे। मैं ऊपर का लाइन हटा देता हूं, आप नोट डाउन करके रख दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो यहाँ पे इसके कंटेंट पढ़ेंगे, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, जहां पे एंगल लगता है वहां पे होता है कॉस, याद रखिए, वेदर एंगल इज इक्वल टू कॉस एंड वेयर देयर इज नो एंगल मींस थीटा इज नॉट देयर विच इज साइन। तो ये अप साइड वाला क्या रहेगा, साइन थीटा, और ये डाउन साइड वाला क्या रहेगा, कॉस थीटा। लेकिन यहां पे क्या लग रहा है, F1 लग रहा है, तो ये F1 cos थीटा, ये F1 sin थीटा, बराबर, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने देखा तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज नथिंग बट द बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है, F1, बेस क्या है यहां पे, F1, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है F, cos थीटा इज इक्वल टू F1 बाय F। अगर हम लोग F1 निकालते हैं, डिवीजन का F इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में बैठेगा, मतलब ये क्या आएगा हम लोगों को, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे ये F1 इज इक्वल टू F cos थीटा, F1 इज इक्वल टू F cos थीटा, बराबर। F1 इज इक्वल टू क्या आया हमारा,
एफ कॉस थीटा। अब अपने पास वर्क डन मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। वर्क डन क्या हुआ, एफ कॉस थीटा इंटू यस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ये वर्क डन निकालने का दूसरा वाला फॉर्मूला है, ये वाला कब यूज करने का और W इज इक्वल टू एफ एस वाला कब यूज करने का, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। अभी देखिए, अगर आपको कभी भी एंगल दिया है, एंगल अगर दिया मींस 37, 45, 53, 180, 190, कुछ भी अगर आपको एंगल दिया है तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मल्टीप्लीकेशन है, प्लेस चेंज किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 इंटू 3 भी 6 ही आता है, 3 इंटू 2 भी 6 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ पड़ता है तो डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन में ही फर्क पड़ता है, बाकी कहीं पे भी हम लोगों का प्लेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। अभी देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको एंगल लेके समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं, तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा, परपेंडिकुलर, तो बताइए ये ब्लॉक किधर को मूव करेगा, नीचे से 2 व्हील्स है इस ब्लॉक के, ठीक है, ये बग्गी है समझिए, इसके ऊपर से फोर्स लगा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखते हो तो ये है मेरा ब्लॉक, मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं ऊपर से और ये जमीन के ऊपर लेटे वाला है, ये ब्लॉक जो है जमीन के ऊपर है, मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं। एंगल कितना हुआ, ये परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल आया यहां पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आया, 90 डिग्री अगर आया तो इसका मतलब आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज कर लेना है, कौन सा वाला, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, सो W इज इक्वल टू क्या आया, 0। यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन W इज इक्वल टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 एट दैट टाइम W इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला हो गया, 0 वर्क डन हो गया। अभी चलते हम लोग पॉजिटिव वर्क डन की तरफ। अब पॉजिटिव वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो पॉजिटिव वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे एक एंगल, वो एंगल रहेगा देखो ऐसा, परपेंडिकुलर एंगल रहेगा, मतलब ऐसा फोर्स लग रहा है इस बग्गी के ऊपर और ये बग्गी भी सीधी सामने जा रही है, सीधा ऐसा, ठीक है, एक ऐसी बग्गी जा रही है, फोर्स भी उसके ऊपर ऐसा लग रहा है। तो अब एक बात बताइए, फोर्स ऊपर से लग रहा है, बग्गी भी सामने जा रही है, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हुआ, कुछ भी नहीं, 0 एंगल हुआ, मतलब यहां पे थीटा क्या रखना है आपने, 0 रखना है। तो अब क्या आएगा, अब इक्वेशन क्या आएगा, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इक्वेशन बनेगा एफ इज इक्वल टू, सॉरी W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1, सो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया। अगर 0 एंगल है तो वर्क डन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव। आ गया सेकंड वाला पॉजिटिव वर्क डन भी। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव वर्क डन की तरफ। निगेटिव के लिए क्या करेंगे, ये बग्गी चल रही है, ये बग्गी जो है सीधी चल रही है, जुम 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 करके ये बग्गी जा रही है, जुम 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 करके जा रही है। सडनली ब्रेक अप्लाई किया तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, पीछे। टायर का फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ब्रेक लगाया पीछे की साइड में, फोर्स कहां लगेगा, पीछे। बग्गी कहां जा रही है, आगे, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितने का आया, 180 का। टायर के बीच में देखिए ना, टायर आगे जा रहा है और ब्रेक पीछे की साइड में लग रहा है, मतलब एंगल कितना आया, स्ट्रेट हुआ मतलब एंगल कितना है, 180 है। तो W इज इक्वल टू क्या करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। सो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू -1 से मल्टीप्लाई करो, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, मतलब ये वर्क डन कैसा है आपका, नेगेटिव वर्क डन आया। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 एट दैट टाइम वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। ये हो गया आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क डन। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, cos 180 क्या है, cos sin 180 क्या है, ये वो बहुत सारा कंफ्यूजन आपके मन में होगा। डोंट वरी, मैं आपको
मैथमेटिक्स में तो आपको हुआ ही है, लेकिन मैं आपको एक नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल इसके ऊपर कि cos 180 क्या होता है, sin 180, sin, और इसकी एक ट्रिक भी है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 45 का वैल्यू कितना है, 80 का वैल्यू कितना है, ये सब हम लोग उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो अभी मेरे चैनल के बाजू में मतलब सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको प्रेस करिए। उससे क्या होगा, जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब बटन इज देयर, यू हैव टू प्रेस दैट बटन। बिसाइड ऑफ दैट, notification is there, bell icon is there, you have to press that bell icon and select it to all, so you will get all the information, whatever the, whenever I upload the video you will get the notification before, means you will get the notification, that's it. So I hope you understood this phenomenon. If you have any doubt, so you can ask me in the comment box which is given below. Don't forget to ask me, okay? Whatever doubt is there, I'm always going to analyze those and definitely going to send you the reply. If you like this, so don't forget to subscribe the channel to get notification for all updating upcoming videos. Thank you. I hope you enjoy the video. If you like this, so don't forget to like, share, and comment. Thank you.